Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and I'm sure all of you must be enjoying your CLAT preparation. This is our October 2019 revision module. Let me start to talk about important issues. Number one, this is very critical. October 27, 2019, USA President Donald Trump announced that Islamic State's leader Abu Bakr al-Baghdadi was died in a raid conducted by US Special Forces, Delta Forces in Western Syria. Okay, and this is what Abu Bakr al-Baghdadi is. He is dead. Okay, now there are a lot of issues we need to understand here. Number one, what was the name of the operation? Name of the operation of this particular you can say raid. जैसे आपको पता होगा कि बिन लादेन को मारने के लिए, ठीक है, दिस इज ऑपरेशन न्यूटन स्पीयर्स करके डाला गया था. ठीक है, यहाँ पे क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन का नाम था यू कैन से कैली, यू कैन से म्यूलर. ओके, सो दिस इज कैली मुलेर बेस्ड ऑन दिस गर्ल. ठीक है, ये लड़की के नाम के ऊपर ये पूरा ऑपरेशन था. क्यों ये लड़की? ठीक है, बहुत ही मजेदार चीज आपको समझना बहुत जरूरी है. दो दिस इज अ रिविजन मॉड्यूल बट आई थॉट to cover this in little detail. So Kylie Muller was 26-year-old girl and she was independent US aid worker. So she was not part of any agency or any organization and she used to help people who were torn by wars. So she was helping people in Syria and Iraq. Okay, so she along with her boyfriend, they were helping a lot of people. सो ऐसी कुछ मदद में सीरियन ISIS के कुछ लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया एंड देन दे सोल्ड हर. ओके, और उसको सेक्स स्लेव बना के रखा. सम और द अदर वे शी गॉट इनटू द आईज ऑफ अबू बकर अल बगदादी. अबू बकर अल बगदादी हैड 3 वाइफ्स. ठीक है, और ये चाहता था कि इसको भी वाइफ बना के रखे. ठीक है, और ये मानने के लिए तैयार नहीं थी. उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया. शी डिड नॉट एग्री. स्टिल बगदादी वॉज फोर्सिंग हर. ओके, and she was trying to free the other girls. बहुत सारी लड़कियों को वो छोड़ने के ऊपर काम किया. उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डालते रहे. एक समय ऐसा आया कि बगदादी ने अमेरिका से डिमांड किया कि भैया हमारा कोई एक बंदा है, स्पेशली कोई एक लेडी थी 61 ईयर ओल्ड, उसको आप छोड़ दीजिए. अमेरिका को बोला उसके सामने हम काइले मुलेर को छोड़ देंगे. अमेरिका ने उस बात को नहीं माना क्योंकि इन्होंने वीडियो बना के डाला था कि आप मेरी चिंता न करिए, आप इनको परेशान करिए. फिर बगदादी ने इनको फांसी की सजा दे दी, इनको मार डाला. दिस हैपेंड इन अराउंड 2016. US remembered her by this particular operation called Operation Kylie Muller. Okay, chali, great. So I hope this is very important thing. Let me start to talk about Nobel Prize winners. So this October month had Nobel Prize winner in one of the module. We have covered in great detail. So I'll be running little fast here. Okay, so this is 5+1 Nobel. I'm sure all of you are aware. So 5 Nobel, they are basically awarded for the first time, and the 6th Nobel was awarded by you can say Riksbank Prize in Economic Sciences. So this is Riksbank, which is one of the capital of you can say Sweden. Okay, आगे बढ़ते हैं. And Nobel Prizes for Physiology or Medicine 3 लोगों को मिला है. This is William J. Kaelin, Sir Peter Ratcliffe and Greg Semenza. Why did they got this you can say prize? Because they worked for the discovery of how cells sense and adapt to oxygen availability. अगर आप कम ऑक्सीजन वाली दुनिया में जाओगे, वहां पे आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करोगे, वो आपका सेल कैसे सीखता है, वो इन्होंने बताया था. सो दिस इज मोर डिटेल अबाउट दिस इश्यू. मूविंग फॉर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का काम इन्होंने तगड़ा किया था. दे वर्कड ऑन लिथियम आयन बैटरीज. ओके, लाइट वेट लिथियम आयन बैटरी, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन, आपकी कारें, आपके कैमरास, आपका कंप्यूटर काम करता है. सो जॉन गुडेनबर्ग, स्टैनली विटिंगहैम एंड अकीरा योशिनो गॉट दिस पर्टिकुलर प्राइज. सो दिस इज लिथियम आयन बैटरी. 1970 में हो चुका था. कॉमर्शियलाइजेशन अभी हुआ, अदरवाइज इट वॉज देयर. प्राइज इन फिजिक्स, ओके, दिस इज गिवन टू जेम्स पेबल एंड माइकल मेयर एंड दिदियर क्विलिस. 3 लोगों को मिला है. Primarily, they discovered physical cosmology or discovery of an exoplanet orbiting solar type star.
सो दे वांटेड टू डिस्कवर कि कैसे एक्सोप्लैनेट हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सैटर्न के कुछ 20 नए नेचुरल सैटेलाइट मिले हैं और जिसकी वजह से उसके टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज लार्जेस्ट नाउ। ओके, सो दिस इज यू कैन से नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लास्ट ईयर आया नहीं था, सो 2018 में अनाउंस किया गया, सो 2018 का देना पड़ा। दिस इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओल्गा तोकारजुक पॉलिश एक राइटर है, एंड 2019 का दिस इज पीटर हैंडके, नोबेल प्राइज पीटर हैंडके। एंड देन नोबेल प्राइज इन पीस इज गिवन टू इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर Abiy Ahmed Ali. Okay, so Mr. Abiy Ahmed Ali worked very hard, you can say, to reconciliate a kind of fight between two countries. One is called Ethiopia, other is called Eritrea. इथियोपिया और एरिट्रिया की लड़ाई इज लाइक इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि जब इथियोपिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से एरिट्रिया वांटेड अ सेपरेट कंट्री। Come 1998, Eritrea got separate country. Okay, and then they had a lot of fight. Those ethnic group of Eritrea, some of them were staying in Ethiopia, were creating trouble. The border was not acceptable to Ethiopia as well as Eritrea. So काफी लड़ाइयाँ होती थी, and this gentleman, that is Mr. Abiy Ahmed Ali, when he came to the power, he worked hard to reduce those tensions. And वो टेंशन आज की तारीख में काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। नहीं तो एरिट्रिया वॉज वर्ल्ड का तीसरे नंबर का कंट्री जहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में रेफ्यूजीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दैट वॉज अ काइंड ऑफ सिनारियो। अब वो सिनारियो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अलीज एफर्ट्स। ओके, बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज in peace. Okay, Nobel Prize in Economic Sciences is given to one of the person who was a person of Indian origin, Mr. Abhijit Banerjee, ठीक है, and Esther Duflo and Michael Kremer. Lot of people are talking about Esther Duflo as the, against a wife of Abhijit, but she worked very hard on her own. So it is not because she's the wife of Abhijit, she received it, but she worked a lot on this particular issue. Okay, so total so far 597 Nobel Prizes between 1901 to 2019. Okay, so these are the numbers available and you can very well remember some of the numbers. Now we talk about some important issues which are a sort of revision. Then I'll come to the revision of, you can say, days. Then I'll come to sports. I'll come to people. ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत इंडाइसिस और थोड़ी बहुत मिलिट्री एक्सरसाइजेस फटाफट देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन इट्स ब्रांच इन मेलबर्न ऑफिस खोली है इन्होंने। कुछ लोगों ने वीडियो के कमेंट में डाला था आगे सिडनी में खोली है, गलत है, मेलबर्न में ऑफिस है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फ्लैग्ड ऑफ दिल्ली कतरा वंदे भारत एक्सप्रेस। दिस इज फ्रॉम 5th of October, ध्यान रखना, दिस इज सेकेंड वंदे भारत। पहली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में, ठीक है, नाउ दिस इज दिल्ली टू कतरा। कतरा बेसिकली वैष्णो देवी टेम्पल। ओके, सो ये आपको याद रखना है, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली कतरा। नंबर 2, Palestine has released a commemorative postage stamp on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary. Okay, so this is what you should remember, Palestine. Nation is also remembering former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 115th birth anniversary. Very important one. Nationwide Paryatan Parv with an objective of Dekho Apna Desh. Okay, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अनाउंस किया था that in a year you should visit 15 new places of India, and thereby Paryatan Parv from 2nd October to 13 October was celebrated. Okay, Chief Minister of Odisha Mr. Navin Patnaik rolled out Mo Sarkar program, which is primarily finding Gandhian roots or Gandhian philosophy in the daily activity of people and helping people to part into गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं वो अप्लाई करने की बात है। इंडिया गॉट देयर फर्स्ट राफेल फाइटर जेट RB001। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, RB001 राफेल बनाने वाली कंपनी दसल्ट एविएशन इन फ्रांस, ठीक है। पहली बैच विल अराइव बाय May 2020, पर राजनाथ सिंह वेंट देयर, नींबू विंबू का पूरा प्रोसेस करके दशहरा के दिन ये लेकर आए थे। A team of astronomers has discovered a whole of some around 20 new moons
which are orbiting, you can say, around the Saturn. Remember, it turns out to be very difficult for this scientist to identify this, क्योंकि एक तो उनको ये जो 20 नए मून ढूंढने में बहुत टाइम लगा. ओके क्यों टाइम लगा? क्योंकि काफ़ी समय से वो रोटेट करते तो रहते हैं, पर कभी कभार कुछ कुछ चीज़ों की वजह से वो देख नहीं पाते, तो उनको बहुत समय लगाना पड़ता है. एंड देयर बाय इट टुक लॉट ऑफ टाइम, मोर देन 2.5 years इट टुक. सो नाउ इट हैज टोटल 82 moons, while Jupiter will be at number 2 now with 79 natural satellites. अभी तक ठीक है, जुपिटर वॉज नंबर 1, बट इन अक्टूबर सैटर्न ने उसको मात कर दिया. आगे के जो पहले 2 सैटेलाइट है जो यू कैन से मिट्टी से बने हुए हैं, दे आर बेसिकली यू कैन से मर्क्यूरी एंड विनस, उनका एक भी सैटेलाइट नहीं है. अर्थ has 1, Mars has 1, ठीक है. सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज, एंड देन द जुपिटर की कहानी चालू होती है. ओके, there is a second India-China informal summit took place between Prime Minister Narendra Modi of India, China's President Xi Jinping. Okay, so I'm sure you know President, at the same time you should know Prime Minister. फटाफट मुझे बताइए चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए. ममल्लापुरम में इनका ये समिट हुआ था. ठीक है, फर्स्ट समिट टुक प्लेस इन वुहान in the wake of Doklam crisis in April 2018. Coming to Typhoon Hagibis, which strikes Tokyo, which is the capital of Japan, and it created a lot of trouble to Japan. Typhoon Hagibis. Indian Railway has announced that it will become net zero carbon emitter by 2030. Climate change is a very critical factor, और जो रेलवे क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है तो ये बोलते हैं कि वी विल बिकम नेट जीरो बाय 2030. UAE announced the establishment of Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence in Abu Dhabi. So this is going to develop at Abu Dhabi. Robot restaurant for the first time in our country in Odisha, Bhubaneswar. ये पहला रेस्टोरेंट बनाया गया जहाँ पे 2 indigenously developed robots are working. Champa and Chameli, these are the names of those robots. Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari has announced naming of one of the National Highway 703 AA as Shri Guru Nanak Dev Ji Marg. Okay, this is very important one. 550th बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट हो रही है, और उस सेलिब्रेशन की वजह से ये नाम आया. कपूरथला टू गोविंदवाल साहिब के बीच में ये कनेक्ट करेगा. ओके, इंडिया विल होस्ट 91st इंटरपोल जनरल असेंबली. इंटरपोल दैट इज इंटरनेशनल पुलिस, उनकी जनरल असेंबली है. सो 2022 में इंडिया will host it. This is what the news is. Okay, remember that. So you need to tell me इंटरपोल का हेडक्वार्टर किधर है. ओके, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल. 40 days long hearing of Ayodhya Babri Masjid dispute came to an end. Okay, and they will be giving verdict before 17th of November when CGI Ranjan Gogoi is due to retirement. Okay, so आपको ये भी पता होगा मिस्टर रंजन गोगोई के बाद कौन बनेंगे. ये रहे भाई साहब जो बनेंगे. ओके, सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस पर्सन. ओके, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, सो ये भैया 40 दिन का अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट इज फाइनली going to get settled in next few. So coming to issue number 17, saying that US President Donald Trump announced sanctions against Turkey. ठीक है, USA said that we are leaving Syria, so उन्होंने अपने ट्रूप्स वहां से हटा दिए, and Turkey advanced in it. Okay, so therefore a lot of problem took place, और दोनों लीडर्स के बीच में कुछ अजीब अजीब बातें भी हुई थी. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has decided to open the entire area from Siachen base camp to Kumar post for tourism purpose. This is primarily Ladakh. ठीक है, आपको पता होगा लद्दाख, लेह एंड लद्दाख has become union territory now, और इसकी वजह से ये अनाउंसमेंट आया. The world's oldest natural pearl named as Abu Dhabi pearl has been discovered on the island of Abu Dhabi, the capital of UAE. आप देख सकते हो उसकी साइज यहाँ पे देख रखे, which is quite less than 1 centimeter size. Okay, काफी छोटा है. World's oldest natural pearl. Okay, State Cabinet of Assam has decided to make government jobs out of the bounds of the people with more than 2 children. Possibly the first state
इन द कंट्री टू डू दैट, कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम January 1, 2021. Okay, coming to number 21, MTNL and BSNL have announced that there is a merger which is going to take place. और इस पर्टिकुलर चीज़ में BSNL ने VRS स्कीम अनाउंस करी है. अभी तक करीबन 18,000 पीपल हैव taken this particular aspect. VRS 18,000 लोगों ने लिया है. People are expecting that this number still will grow to some around 50 to 60,000 people. MTNL and BSNL have merged. Okay, coming to number 22, J&K, Jammu Kashmir का Chenani Nashri Tunnel, which is a 9 kilometer long tunnel that reduces distance between Jammu and Srinagar by 31 kilometer. It has been renamed as Shama Prasad Mukherjee, which is Asia's longest bi-directional highway tunnel. आप देख सकते हैं मोदी साहब का यहाँ पे फोटोग्राफ, जब ये इनोग्रेट हुई थी तब मोदी साहब गए थे, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके नाम पे ये टनल बनाई गई है. करतारपुर कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा, देयर इज अ करतारपुर, देयर इज अनदर प्लेस है ना इन पंजाब विच इज कॉल्ड किरतपुर. ओके, किरतपुर एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे सिख लोग अपने आशीष फाइनली उनकी जो आशीष होते हैं वो वहाँ पे डालते हैं. ठीक है, दिस इज किरतपुर, दिस इज इन इंडिया. Kartarpur, this is in Pakistan. So there is an agreement between India and Pakistan for this Kartarpur Sahib agreement. Okay, so on November 9, Prime Minister will inaugurate Indian side of Kartarpur corridor. Okay, so ये मजेदार चीज़ हो रही है. करतारपुर याद रखिएगा. महारत्ना status has been granted to two organizations now. One is called HPCL, other is called Power Grid Corporation of India Limited. Now the Maharatna numbers have increased. So you have to tell me how many Maharatna PSUs are there. I have given answer here, but you can search and give me your answer. Maharatna status कितने PSUs को अभी तक मिला है? Indian tourists will now be exempted from visas to enter into Brazil for tourism as well as for the business purpose. जो भी tourism या business purpose के लिए जाते हैं उनको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है. This came in the backdrop of BRICS nations को ब्राज़ील ने now allow किया. सभी लोग BRICS में से आ सकते हैं without any visa. Okay, so आपके सामने दिख रहा है ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो. ओके, और ये फ्लैग है और इसका नाम बताइए. ये वन ऑफ द वेरी फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ ब्राज़ील. ब्राज़ील का कैपिटल भी बताइएगा. वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू लेड द इंडियन डेलीगेशन एट 18th समिट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ओके, ये हुआ था अजरबैजान के कैपिटल बाकू में. NAM, non-alignment movement, one of the very important one. So after Cold War, the two countries, America and USSR, they developed their own cloud and they asked various countries to join those. ओके, सो अमेरिका की तरफ से वो कौन सा ग्रुप था और रशिया की तरफ से कौन सा ग्रुप था वो फटाफट बताइए मुझे. ठीक है, एंड 27 पॉइंट सेज 28 मेंबर डेलीगेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन met PM Modi on October 28th and this delegation visited Kashmir. Okay, and they wanted to understand the reality of Kashmir. ठीक है, पर बहुत ही ज़्यादा कवर्ड सिचुएशन बताई गई थी, सही सिचुएशन तो नहीं बताई. ठीक है, अभी भी उसके बारे में बहुत हल्ला चल रहा है. Coming to number 28, government of Pakistan released a new coin to commemorate 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak. ठीक है, so this is a coin which has been, you can say, developed by Pakistan. Coming to important days, ये रहे आपके सामने पूरे अक्टूबर मंथ के डेज. ठीक है, मैंने क्या किया है, डेज लिखे हैं, उसकी डेट है, इंपॉर्टेंट किस चीज़ का है और थीम लिखी है. मैं फटाफट बता देता हूँ. 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स. 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. दिस इज गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर. ओके, ठीक है, सो दिस इज गांधी जी. 1st मंडे ऑफ अक्टूबर इज नोन एज वर्ल्ड हैबिटेट डे. 9th अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे. इस बार का उसका थीम ये था, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन. 11th अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे. 14th अक्टूबर इस बार का उसका जो थीम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वीडियो स्टैंडर्ड्स.
क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज, ठीक है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 24 अक्टूबर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे विच इज ऑन सरदार पटेल, ओके, सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है। एंड वर्ल्ड सिटीज डे इज ऑल्सो 31 अक्टूबर। थीम दिस ईयर वॉज इनोवेशन एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने, फटाफट मैं आपके सामने दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर इज वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे मैंने बताया यहाँ पे आपको। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट वर्ल्ड पोस्ट डे प्राइमरली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ पोस्ट, ठीक है। एंड देन कमिंग टू नंबर 7, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, दिस इज 11th अक्टूबर एवरी ईयर, ठीक है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14th अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे 16th अक्टूबर, आपको पता होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ मेंबर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन 1945, ठीक है। आपको बताना है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। सो कमिंग टू नंबर 10, यूनाइटेड नेशन ने पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए ये डे बना के रखा है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी विच इज अ पार्ट ऑफ दोज SDG, 17 SDG होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पता होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रोटैलेंट को फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ें पक्का पता रहती है। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर इज ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि इस दिन को ये 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर 91 एडॉप्ट हुआ था। बर्थ एनिवर्सरी और सरदार पटेल 31 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड। इस बार सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड भी अनाउंस मतलब किया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 31 अक्टूबर एज वर्ल्ड सिटीज डे, ओके। नाउ कमिंग टू इंडेक्सेस, 4 बड़े इंडेक्सेस इस अक्टूबर महीने में आए। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया, जिसमें स्कूल का क्वालिटी कैसा है, केरला बिकेम द टॉप, यूपी बिकेम बॉटम, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ वॉज एट द टॉप। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया इज एट 68th पोजीशन, ठीक है। सिंगापुर बिकेम टॉप, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया काफ़ी बुरा हुआ, 102 पे पहुंच गया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड यू कैन से वेल्थ हंगर लाइफ ने ये निकाला था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट्स द ओनली गुड थिंग, ठीक है। स्टार मार्क बोले इंडिया को तो सिर्फ इसमें मिला, हर इंडेक्स इसमें इंडिया की बर्बादी हो रही है। एकमात्र दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है, सो उसमें इंडिया का रैंक 63 आया, बाकी सब में सिचुएशन अच्छी नहीं थी। फटाफट देख लेते हैं एक एक करके। केरला हैज टॉप्ड दिस नीति आयोग, बॉटम में उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ इज एट द टॉप इन द यूनियन टेरिटरी लिस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला था। Total 103 indicators were distributed among the 12 pillars and World Economic Forum में, ठीक है, Singapore has topped the list. Global Hunger Index, India is 102 out of 117. This is far behind our neighbors, Nepal, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट रैंक अमॉन्ग आवर नेबर्स। पाकिस्तान भी बेटर पे है, 94 पे है, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 66, नेपाल 73, चाइना 25. So this is bad. Okay, World Bank released ease of doing business. In this ease of doing business, India has done well. We jumped 14 places and reached to 63rd rank. While number 1 is न्यूजीलैंड, ठीक है। मैंने आगे सिंगापुर बोला था जो लास्ट ईयर का था, इस बार इट इज न्यूजीलैंड, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा उसको। और जो सबसे लास्ट पे है दैट इज सोमालिया, ठीक है। बनता है सोमालिया का इतना नीचे जाना, बनता है, ठीक है। नाउ वी गो टू द स्पोर्ट्स जीके, अक्टूबर का स्पोर्ट्स जीके। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, ठीक है, हैज वन रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ओके। सो दिस इज सोची में हुआ था रशियन ग्रैंड प्रिक्स। ये लुइस हैमिल्टन साहब जीत रहे हैं रेगुलरली, और ये शूमेकर से 1 पॉइंट नीचे आए बस। अब अगला एक जीत गए तो शूमेकर जितना हो जाएगा, और फिर उसके बाद जीता तो वर्ल्ड में इससे बड़ा किसी ने नहीं जीता। इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैज बीन वोटेड एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने तगड़ा काम किया था। एक तो उन्होंने एशेज में अच्छा काम किया, और वर्ल्ड कप तो तगड़ा खिला ही था इन्होंने। टॉम बेंटन ऑफ सोमरसेट पिक्ड अप for PCA Young Player of the Year, while England bowler Sophie
Eccleston collected the Women's Player of the Summer Award. Okay, so याद रखिएगा, this is little different award than what Ben Stokes received. Japan's Naomi Osaka has won China Open. China Open जीता है भैया जापान की नाओमी ओसाका ने, ठीक है. And then Novak Djokovic defeated Australia's John Millman in Japan Open title. Okay, similarly Harmanpreet Kaur become first Indian to play 100 T20. Remember, first Indian, मेल फीमेल की बात नहीं है, हर केस में, है ना. सो दिस इज हरमनप्रीत कौर, सबसे ज्यादा खेलने वाली. ओके, एशली बार्टी हैज बीन अवॉर्डेड एज ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर, द डॉन अवार्ड एट द एनुअल स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम. एशली बार्टी, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स की हाईएस्ट ऑनरिंग द डॉन. एमसी मेरी कॉम वन ब्रॉन्ज मेडल एट रशिया उलान उडे में, जो वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे इनको मिला. इंडिया के शटलर मिस्टर लक्ष्य सेन has clinched maiden BWF World Tour title by winning Dutch Open Man single. Lakshya Sen, ठीक है. Zimbabwe and Nepal have been readmitted into ICC, ठीक है, क्योंकि ICC ने इन दोनों को निकाल दिया था करप्शन चार्जेस में, अब ये उनको वापस ले लिया है. So now they can play test matches and ODI and everything, ठीक है. Barcelona captain Leo Messi has received 6th golden shoe as a top scorer in the European League. This is 6 गोल्डन शूज के साथ आपके सामने लियोनेल मेसी, ठीक है. 17-year-old मुंबई टीनेजर यशस्वी जायसवाल मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई, ठीक है. वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाला यंगेस्ट पर्सन इज यशस्वी जायसवाल फ्रॉम मुंबई. इंडियन चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद हैज penned a book title called Mind Master, winning lessons from the champions of life, ठीक है. American artistic gymnast Simone Biles became the most decorated gymnast in the world. Okay, she collected 24th and 25th medal, both gold on the floor and balance beam. This broke the record of 23 world medal by Belarus male gymnast Vitaly Skerbo, ठीक है. So Simone Biles तगड़ा करती है ये, ठीक है. 3 बार हवा में वो ऐसे कर्व ले लेती है. सो दैट्स ह्यूज, ठीक है. वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस कैप्टन सौरव गांगुली टुक ओवर एज 39th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई. ओके, याद रखिएगा, ये बीसीसीआई के 39th प्रेसिडेंट. रौनक सदवानी बिकेम इंडिया 65th ग्रैंड मास्टर. He defeated Russian Grandmaster Alexander Mortilev to become the Grandmaster at the age of 13 years, 9 months and 28 days. Indian cricketer Rohit Sharma smashed the former Australia cricketer Don Bradman's record of highest average in the Test cricket on home soil, ठीक है. खुद की जमीन पे इतना ज्यादा बनाना. डॉन ब्रेडमैन का एवरेज था 98.22 और रोहित शर्मा का एवरेज 99.84, ठीक है. इन द फाइनल ऑफ 7th सीजन ऑफ विवो प्रो कबड्डी लीग 2019, बंगाल वॉरियर्स डिफीटेड दबंग दिल्ली बाय 39-34 एट ईका एरेना विच इज इन अहमदाबाद, गुजरात. पता होगा आपको, विवो प्रो कबड्डी, ठीक है. इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह एंड बैट्सवुमन स्मृति मंधाना हैज वन वाइजडेन इंडिया एल्मेनिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड. दोनों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वाइजन इंडिया की तरफ से. वाइजन इज अ मैगजीन फॉर क्रिकेट. मर्सिडीज ड्राइवर एंड 5th टाइम वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन क्लिंच्ड 10th win of the season Mercedes at the Mexican Grand Prix 2019. 1 पॉइंट दूर, ठीक है, टू मैच शूमैकर, ठीक है. Coming to military exercises, some of the important military exercises. 14th edition of Indo-Mongolian joint military exercise called Nomadic Elephant, ठीक है. This is 14th edition, ठीक है. Indo-Mongolian, Mongolia और इंडिया के बीच में, this is known as Nomadic Elephant. Second joint military exercise called Dharma Guardian is between India and Japan, ठीक है. Dharma Guardian, India और जापान. Indian Air Force and Japanese Air Force carried out joint Air Force exercise called Shinyu Maitri. Shinyu Maitri is between India and Japan for the Air Force purpose, ठीक है. Indian Army conducted their own exercise codenamed as Sindhu Sudarshan for the year 2019 in the deserts of Rajasthan. The aim of this exercise to evaluate the capabilities of the defense services in an integrated air-land battle. Okay, so Sindhu Sudarshan. Bilateral exercise Shakti was between India and France. Okay,
दिस held at राजस्थान, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति. Now there are people who are in the news we are talking about. Smriti Irani, our union minister, you can say she inaugurated India's largest charkha made up of waste plastic in Noida. Okay, याद रखिएगा, this is on Mahatma Gandhi's birth anniversary. Government has appointed economist Surjit Bhalla as an executive director of IMF. Okay, President Ramnath Kovind presented Swachh Giri Award to Sachin Tendulkar as a Swachhta Ambassador Award. Bhopal Municipal Corporation and Central Pollution Control Board have joined their hand to set up country's first e-waste clinic in Bhopal in Madhya Pradesh. Director General of UNESCO, Audrey Azoulay, has named Mexican address Yalitza Aparicio as UNESCO's Goodwill Ambassador for Indigenous People. Very important one. I've given this in detail to you in the first session. Legendary saxophonist, Padma Shri awardee Kadri Gopal Nath passed away. Carnatic music में बहुत आगे बढ़ते हुए थे. Forbes has released the Forbes India Rich List. उसके ऊपर नंबर 1 पे है Mr. Mukesh Ambani with 51.4 billion net worth. ठीक है, he remained the number 1. Number 2 पे गौतम अदानी, ठीक है, which is at 15.7 billion worth. Indian Forest Service officer Mr. Ramesh Pandey has been selected as a prestigious Asia Environmental Enforcement Award. This is by the United Nations Environment Program, UNEP की तरफ से इनको ये अवार्ड मिला है. Very good thing, Mr. Ramesh Pandey साहब ने अच्छा किया है. 31st Indira Gandhi Award is given for national integration, and this award is given to Mr. Chandi Prasad Bhatt, who was pioneer of Chipko movement. Chandi Prasad Bhatt for Indira Gandhi Award for National Integration. Alexei Lenov was the first human to walk on the space who passed away recently. ठीक है, he was Soviet cosmonaut. ठीक है, he was the first human to walk in the space 54 years ago. Star mark करके लिख दीजिए, पक्का पूछा जाएगा. ठीक है, coming to number 10, Margaret Atwood and Bernardine Evaristo have jointly won 2019 Booker Prize. ठीक है, आफ्टर द जजेस फ्लाउट द रूल्स बाय डिक्लेयरिंग अ टाई. और टाई हो गया, आज तक टाई हुआ नहीं था. दिस इज अ टाई. क्या क्या था? द टेस्टामेंट एंड द गर्ल, वुमन एंड द अदर. ये किताबों की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है. नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मेयर हैज मेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग फर्स्ट एवर ऑल फीमेल स्पेस वॉक 7 hours they spent outside ISS, that is International Space Station, replacing a failed power control unit. ये दोनों ने ये काम किया है, क्रिस्टीना कोच, जेसिका मेयर. Okay, coming to number 12, European Union leaders have confirmed the appointment of Christina Lagarde. Christina Lagarde will become the new chief of European Central Bank. So IMF से इन्होंने resign किया था, उसके बाद she is part of European Central Bank. Okay, coming to our Chief Information Commissioner CIC, Mr. Sudhir Bhargava, was in the news because he alleged at a public meeting that government officials are violating RTI Act and they are going unpunished because of this. So this is really a big issue. He reported that there are 97% of RTI violations in 2018-19. This is huge. Mr. Sudhir Bhargava, आपको याद होना चाहिए, CIC. Senior BJP leader Manohar Lal Khattar has sworn in as the Chief Minister of हरियाणा. आपको पता होगा हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और अभी तक महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं है. अभी ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं. माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स ओवरटुक जेफ बेजोस टू बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन का नाम में वापस बिल गेट्स आ चुके हैं. जस्टिस शरद अरविंद बोबडे वॉज अपॉइंटेड एज 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. He will take this position on 19th November, ठीक है, 18th November, and he will be serving for 17 months. Okay, he was earlier a judge at Madhya Pradesh, ठीक है, and later on he was elevated to Supreme Court. Sharad Arvind Bobde, 47th Chief Justice of India. Union government has appointed Mr. Girish Chandra Murmu as the Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, while Radhakrishna Mathur has been appointed as the Lieutenant Governor of Leh and Ladakh.
ओके, सो दिस इज अ न्यू मैप विच इज डेवलप, ये रहा आपका पूरा मैप, और इसकी वजह से ये जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान से सुनना, ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री नाउ। अभी तक था वो कच्छ, ठीक है, सो अब हो चुका है लद्दाख, ठीक है, और ये रहा आपका जम्मू कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू सम अराउंड 17 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो अब टोटल हमारे सामने है 9 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स, ये बिल्कुल याद रखिएगा, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। Okay, coming to number 19, Padma Shri awardee and India's oldest yoga teacher, Nanamala, passed away. She had bagged 150 awards and 6 national level gold medals and Yog Ratna award for the योग वर्क। 98 years की एज पे भी वो सब योगा पोजिशंस कर सकती थी। Okay, then Rafael Mariano Grossi of Argentina has been elected as the new Director General of IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो फटाफट मुझे बताइए। दिस इज इंटरेस्टिंग। नंबर 21, फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर एंड महाराष्ट्र डीजीपी दत्ता पदसलगाईकर हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो आपके सामने है, ठीक है, आपको इनका नाम बताना है। मैंने आपके सामने डेप्यूटी एनएसए का नाम डाला है, दैट इज दत्ता पदसलगाईकर। ओके, चलिए, great. Now we are talking about books which are in the news for the October month. A new book titled 150 Years of Celebrating Mahatma, the South African Legacy by Fakir Hassan has been launched in South Africa. The founder of Microsoft Corporations and American philanthropist Mr. Bill Gates released his new book called How to Avoid a Climate Disaster. Okay, याद रखिएगा ये, this is very important. A new book titled India in a Warming World, Integrating Climate Change and Development is set to release on November 2019. Indian historian and educationist Mr. Kashinath Pandit released a book called 10 Studies in Kashmir, History and Politics. This is published by Academic Foundation.